a small mass which are coming from this bigger mass. Suppose this is your a small mass, we consider this is dm, and it is moving with a relative velocity of vr, and their mass of the bigger mass that will be reduced to m naught minus dm. Good afternoon everyone, my name is Vijay Kumar and today I am going to discuss the variable mass. Suppose we consider this is a bigger mass and this is moving with a velocity of, their mass is your m naught, and it is moving with a velocity of v naught. And after this, sometimes a small mass which are coming from this bigger mass, suppose this is your a small mass, we consider this is dm, and it is moving with a relative velocity of vr, and their mass of the bigger mass that will be reduced to m naught minus dm. And suppose the velocity of the bigger mass that changes, अब इसकी वेलोसिटी जो चेंज हो जाती है दैट इज v नॉट प्लस dv. यहां जो vr है, vr रिप्रेजेंट्स इट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर मास विथ रेस्पेक्ट टू द बिगर मास. द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर मास. ये स्मॉलर मास का मतलब है ये जो है बिगर मास से क्या हो रही है, डिटैच हो रही है. इट इज डिटैचिंग फ्रॉम द मेन मास. सो दिस द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर मास विथ रेस्पेक्ट टू द बिगर मास. इसका मतलब हम वी लिख सकते हैं इज इक्वल टू velocity of the smaller mass minus velocity of the bigger mass. तो उस इंस्टेंट पे बिगर मास क्या हो जाएगा, दिस इज योर m नॉट माइनस dm. अब यहां जो vdm लिखी हुई है ये वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर मास जो है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और ये भी जो वेलोसिटी ऑफ जो बिगर मास है, बिगर मास आप रिड्यूस होके आपका हो गया m नॉट माइनस dm. दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी दैट विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, दैट इज इक्वल टू इट इज v dm माइनस जो बिगर मास की अब वेलोसिटी क्या होगी, v नॉट प्लस dv. And that is equal to, so we can write what is the velocity of the smaller mass with respect to the ground. तो ये हो जाएगा आपका vr प्लस v नॉट प्लस dv. ये हमारा निकल गया velocity of the smaller mass with respect to the ground. अब इस पूरे सिस्टम में क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही है. नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट इज जीरो. सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Net external force that is acting on whole system that is equal to zero, so we can apply the conservation of momentum. So from conservation of momentum, इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लिख सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम होगी पूरे सिस्टम की, वो सेम मोमेंटम जो होगी बाद में भी होगी उसकी. जब जो है मास उससे डिटैच कर रहा है उस समय जो सिस्टम की जो टोटल मोमेंटम होगी वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगी. सो वी कैन राइट m नॉट v नॉट इज इक्वल टू dm. अब ये जो dm मास जो उससे निकली है उसका वेलोसिटी हम क्या लेंगे, उसके साथ जो वेलोसिटी होगी दैट विल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड into vr plus v naught plus dm plus velocity of the main mass, momentum of the main mass.
and that is equal to m naught minus dm into v naught plus dv। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, सो वी गेट एज dm into vr plus dm into v naught this is dv, dm into dv plus m naught v naught plus m naught dv minus dm into v naught माइनस dm into dv। अब हम देख सकते हैं dm into v naught ये कैंसिल हो गया है, dm into dv ये भी कैंसिल हो गया, m naught v naught यहां m naught v naught से कैंसिल हो गया। तो इस केस में हमारा रेस्ट क्या बचता है, इट इज dm into vr प्लस m naught into dv that is equal to 0. So we can write as it is m naught into dv is equal to minus vr into it is dm by इसको मैंने dt से डिवाइड किया। अब इसमें जो मैंने dt से डिवाइड कर दिया तो ये जो है m naught into dv by dt it represents the thrust force, vr is the that is the relative velocity of the mass which is detaching from the main mass, or dm by dt this is the rate of the mass which is detaching from the main mass। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m naught into d by dt that is called the thrust force, it is represented by ft is equal to minus vr into dm by dt। ये जो है ये मास का है, जो मास आपकी डिटैच हो रही है, इट इज इन kg per second, और ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी एंड दिस इज थ्रस्ट फोर्स। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन से कंक्लूजन क्या क्या निकलता है, जो थ्रस्ट फोर्स है that is given as minus of vr into dm by dt। इसका मतलब है अगर मेन मास जो है, अगर मेन मास अगर डिक्रीज हो रहा है, मतलब उससे में से मास बाहर निकल रही है, तो उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी that will be opposite to the direction of the main mass। दूसरा चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि इस केस में जो थ्रस्ट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सेकेंड कंक्लूजन इससे ये निकलता है कि अगर मेन मास अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसमें अगर अंदर में मास जा रहा है, तो उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो मेन मास के डायरेक्शन में ही होगी, और थ्रस्ट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। और अगर इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, फर्स्ट अगर मान लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो थ्रस्ट फोर्स आपकी जीरो हो जाएगी, दिस ft विल बी जीरो। सेकेंड, इफ अगर मेन मास डिक्रीज हो रही,
इफ मेन मास इसको मान लेते हैं m से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो उस केस में VR will be, the direction of VR will be opposite to the direction of main mass. इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट फोर्स द डायरेक्शन ऑफ Ft is opposite to the direction of VR. This is our second conclusion. And what is the third conclusion? अगर मेन मास इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसके अंदर अगर मास जा रहा है, इफ मेन मास इंक्रीजेस अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो जो VR की जो डायरेक्शन होगी, VR will be along the direction of मेन मास. हम लोग इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि इस केस में जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ thrust force is along the direction of the VR. Okay, now we are coming to a problem. जैसे मान लेते हैं कोई मेन मास है ये आपका, एट टाइम t इक्वल टू 0 इसकी कुछ वेलोसिटी दी हुई है. सपोज इसकी वेलोसिटी u दी हुई है एट टाइम t इक्वल टू 0, और एट टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी मास मान लेते हैं कि m0 दी हुई है. इसका मास फ्लो रेट म्यू जो दिया हुआ है, म्यू दैट इज योर मास फ्लो रेट, दैट इज इक्वल टू dm/dt. और इसको जो रिलेटिव वेलोसिटी जो दी हुई है दैट इज योर vr, और म्यू भी इसकी दी हुई है that is equal to dm/dt, mass flow rate. So इस प्रॉब्लम में मुझे फाइंड आउट करना है what is the velocity of this rocket after time t. Determine the velocity after time t. सबसे पहले मैं इसमें एनालिसिस करेंगे कि व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग हियर. इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो मेन मास के वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है. इसका मतलब इस केस में जो थ्रस्ट फोर्स लगेगी वो रिलेटिव वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. तो इसका मैं रेड कलर से फ्री बॉडी डायग्राम में आपको ड्रॉ कर देता हूं. इसकी जो थ्रस्ट फोर्स लगेगी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. ये ऊपर जा रहा है तो इसका फ्री बॉडी में नीचे आपका वेट भी लगेगा, सपोज m इंटू जी, जहां पे m जो है दैट इज द मास एट एनी टाइम t. इसको हम mt भी लिख सकते हैं. mt दैट इज योर मास एट एनी टाइम t. तो
तो इस रॉकेट पे जो नेट फोर्स लगेगा किसी टाइम t पे, मान लेते हैं किसी टाइम t पे जो है इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। एट एनी टाइम t देयर वेलोसिटी बिकम्स v। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स क्या होगा इसका? नेट फोर्स में आपका थ्रस्ट फोर्स भी लग जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एट एनी टाइम t, जो इस पे नेट फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स माइनस mt इंटू जी। Now what is the thrust force? So thrust force is equal to, it is Vr into dm by dt, dm by dt mass flow rate, और dm by dt आपका दिया हुआ है, this is equal to Vr into mu। तो यहां पे हम लिख सकते हैं this is equal to Vr into mu माइनस किसी टाइम t पे इसकी मास क्या हो जाएगी? m0 जो मास है इट इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 माइनस म्यू इंटू टी। दिस द मास ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम t पे ये मास हो जाएगी। तो यहां पे हम mt का वैल्यू रख देंगे mt माइनस म्यू इंटू टी इंटू जी। और नेट फोर्स मुझे पता है, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस इज इक्वल टू मास इनटू इट इज dv बाई dt। ये भी आपका mt हो जाएगा। इसको हम फिर से लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू mt माइनस म्यू टी इंटू dv बाई dt इज इक्वल टू Vr इंटू म्यू माइनस m0 माइनस म्यू टी इंटू जी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू Vr इंटू म्यू डिवाइड बाई m0 माइनस म्यू टी माइनस जी इंटू माइनस जी। सो इससे हमारा ये आ जाएगा दिस dv इज इक्वल टू Vr म्यू डिवाइड बाई m0 माइनस म्यू टी इंटू dt माइनस जी इंटू dt। नाउ इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to t। एट टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी u दी है, इसको हम u से v लिख देंगे। इसको हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल टू, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Vr डिवाइड बाई म्यू लॉन ऑफ m0 डिवाइड बाई m0 माइनस म्यू टी माइनस जी टी। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गया। We can write as v is equal to u plus this mu and mu will be cancel out. It is Vr ln m0 divided by m0 minus mu t minus gt. So this is the velocity of the rocket at any time t. Okay, thank you. I hope it is clear to everyone. Thank you.